یہ لوگ اس کا ترجمہ مور کرتے ہیں تصدیق والی، اور یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی نبی آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ساتھ آئے گا۔ وہیں سے انہوں نے ایک نبی کو یہ ایجاد کرتے ہیں جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور وہیں سے پھر وہ دوبارہ اس کو وہیں پہ بند بھی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ وہی نا عجیب و غریب قسم کا، حالانکہ جب کہ اس آیت کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی کہ ہر قسم کی نبوت، ہر قسم کی جو وحی القام، ہر قسم وہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ کسی نیک بندے کو کوئی اچھا خواب آ جائے تو آ جائے، باقی ہر قسم کا ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح کر دی اور وہ آیت بھی صاف بتا رہی، جیسے تصدیق کا مطلب لیں، مہر کا مطلب لیں، جو مرضی مطلب لے لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اس آیت میں نبی بھی کہا گیا، رسول بھی کہا گیا، نبیوں کی مہر کہہ دیا گیا ہے۔ تو اس کے آگے پھر بات کرنے کے، پھر اگر لیٹس سپوز اس کے علاوہ کسی اور آیت یا کسی اور حدیث یا کسی اور چیز پہ بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو اسی آیت کی روشنی میں دیکھیں گے۔ پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی نہیں ادھر جا کے نا، ادھر سے دیکھو جی ایسے ہے تو پھر اس سے نہیں، یہ مین آیت یہ ہے۔ اب اس میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے، نبیوں کی مہر بھی بتا دیا گیا، مردوں میں کسی کا باپ بھی نہیں ہے، رسول بھی ہیں۔ تو مہر کا مطلب ہوتا ہے آخری، یعنی کہ ختم ہو گیا نا، بلکہ یہ تو آخری سے بھی زیادہ، جسے کہتے ہیں نا مہر ہی لگ گئی ہے، ان پہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ان بھی کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ مطلب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں سمجھ لگتی۔ اور اگر انگلش میں مطلب لیں، کسی گھوڑے سے بھی پوچھے تو سیل آف دی پروفٹ آ جاتا ہے۔ سیل آف دی سیل کیسے کہتے ہیں؟ بھی ختم، خلاص نبیوں کا سلسلہ کر بند ہو گیا۔ لیکن پھر بھی، اور جب نبی پاک نے اسی آیت کی خود تشریح کر دی ہے تو پھر بھی اس کے بعد بھی طویلیں کرنا تو وہ بیوقوفی، طویلیں کرنا میں تو گناہ سمجھتا ہوں، طویلیں کرنے کو، اور اسے آگے اس آیت کے علاوہ کسی اور آیت پہ بات کرنے کو گناہ سمجھتا ہوں۔ اور یہ میں تو سمجھتا ہوں بھی کہ جب کوئی بات کرتے ہیں نا، اس کا مطلب آپ مان رہے ہیں، آپ نے کھانا کھول دیا کہ ہاں بھی کوئی شاید دوسرا بھی کوئی آ سکتا ہے اور بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ جب آپ لوگ بات کرتے ہیں اس آیت کے علاوہ آگے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو گھما پڑا کے پھر کبھی کدھر لے جاتے ہیں، کبھی کدھر لے جاتے ہیں، تو وہ خود بھی گمی کمیریوں میں پڑے جاتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی گمی کماری میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے نزدیک تو وہ گناہ بھی، باقی اللہ پاک معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سب بھائیوں کا؟ الحمدللہ بھیا، آپ سناؤ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک۔ اچھا، پیر اسکانی صاحب ہیں بھی یہاں پہ؟ سن رہے ہیں؟ نہیں، وہ بزی ہیں۔ بزی ہوں گے، سو رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ بھی سین ہے۔ اپنے وہ آیت سنی ہوئی ہے، میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نے آپ سے بلکہ میں ایک سوال کرتا ہوں خان صاحب۔ جی ہمارا جو کہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ جب آئیں گے اور آ کر وہ جب انصاف وغیرہ کریں گے تو وہ تو زبور سے کریں گے، قرآن مجید سے کریں گے؟ نہیں بھائی، آپ کا، ہم نے جو قرآن پڑھا ہے، ہم نے تو قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نا فوت کر کے، جیسے سب کو فوت کر کے اللہ پاک لے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کے جسم کے ساتھ ہی لے گئے ہمیں۔ اور جو دوسرا شخص تھا اسے علیہ السلام کی شکل دے دی، دوسرے شخص کو سلیب دے دی گئی، اور جب اللہ پاک لے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو تو جو بھی چلا جاتا ہے اس دنیا سے، فانی ہے دنیا، کوئی بھی نہیں آ سکتا، نہ آتا ہے۔ اچھا، میں ایک چیز کلیئر کر دوں، باقی اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ میرا نام مرزا محمد علی ہے، میں سنی ہوں واقعی میں، ٹھیک ہے۔ میرا سوال آپ نے وہ تھوڑا اس سائڈ اس طرح کا سنا ہوگا تو آپ کو لگا ہوگا کہ کہیں یہ قادیانی تو نہیں ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ بیسیکلی صبح میری بحث ہوئی تھی۔ کوئی بھی ہو میرے نزدیک بھیا،
अब कादियानी हो, सुन्नी हो, मुस्लिम हो, हर बंदे का अपना, अपने मुझसे सवाल किया ना, मैं तो समझता हूँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम गए हैं तो वो भी वापस नहीं आएंगे, बाकी हर बंदे का अपना अपना कीदा होता है। सही। तो मेरी सुबह इस बारे में बहस हुई थी और वो बंदा मुझे कहता है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तुरैत और ज़बूर मेरे ख्याल है सिखाई। तो कहते हैं कि कुरान मजीद तो उनको नहीं सिखाया, तो वो जब आएंगे तो अल्लाह ताला उनको फिर से वही भेजेंगे या वो किस तरह सीखेंगे? तो मैंने इस बात का जवाब दिया था कि मतलब अल्लाह ताला की पावर्स को आप चैलेंज कर रहे हो, क्या वो सिखा नहीं सकते दोबारा उनको, एक और किताब नहीं सिखा सकते? दूसरी बात मैं कहा किताब तो है यहाँ पे, तो वो उसे पढ़ के भी जान सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फिर वो बंदा मुझे कहता है कि नबी को जो है सिर्फ नबी सिखा सकता है और अल्लाह सिखा सकता है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? भाईजान एक्चुअली क्वेश्चन तभी निकलती है ना जब कहीं पे कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसके फिर ना यानी कि लॉजिक नहीं होती ना, जबकि इस्लाम जो है ना ये लॉजिकली दीन है, प्योर लॉजिकली है। जब वो लॉजिकली जो लॉजिक नहीं होती तो फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते रहते, बंदा कंफ्यूज ही रहता है। जबकि सिंपल सादा दीन है और कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं है, लेकिन अब हम लोग खुद ही वो इस तरह के बिलीव रख लेंगे तो फिर रॉकेट साइंस ही बन जाएगी ना। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा भाई आले इमरान की 37 पढ़े ना आपके पास अगर आया तो। आले इमरान की आयत 37 जी 37 जी, एक मिनट में, मेरे पास असल में तफसीर है तो मुझे वो पूरी खोलनी पड़ेगी। इमरान सूरत 61 है मेरा ख्याल है, पूरे नहीं, मुझे सूरत नंबर मिल सकता है? आले इमरान भाईजान तीसरी सूरत है। ओके सॉरी, हाँ बिल्कुल, पेज नंबर 31। अब इस तरह की चीज़ें मैं सीखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। मुझे ना सिर्फ 1 मिनट दें, क्योंकि ना मुझे एक चीज़ नज़र आई है, सिर्फ 1 मिनट दें, मैं आया, मैं ये पढ़ता हूँ। जी मैं आ गया हूँ। आयत नंबर क्या थी? 37। अच्छा, सलाम अलैकुम। खामोशी क्यों है जी? खामोशी नहीं है, तफसीर खोली है। हाँ ठीक है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है, खोलिए। अच्छा खान साहब, आप नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को नहीं मानते?
क्यों नहीं मानते भाईजान? जो हदीसों को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की खबर नबी पाक ने नहीं की? तो भाईजान हदीस को हम कुरान की रोशनी में देखेंगे ना, कुरान को हदीसों की रोशनी में नहीं ना ये देखेंगे। किसने कहा कि कुरान की प्रॉब्लम यहाँ पे होती है ना, गलती मिस्टेक यहाँ पे खा लेते हैं। खान साहब ये बात किसने कही है? तो किसने कहा कि भी आप, मैंने तो सवाल अभी बात की। यही क्वेश्चन आपकी तरफ बन जाता है ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने एक असूल बयान किया है कि हदीस को कुरान की रोशनी में देखेंगे। मैं पूछ रहा हूँ ये किसने हुक्म दिया है कि हदीस को कुरान की रोशनी में देखेंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। कॉमन सेंस कैसे ये आपको कहता है कि कुरान की रोशनी में देखेंगे? भाईजान अब हदीस जो है वो 100-200 साल के बाद लिखी गई है, तो हदीस में चेंजिंग हो सकती है ना, कुरान पाक में चेंजिंग नहीं ना हो सकती। अच्छा, तो हदीस को ही हम देखेंगे ना कुरान की रोशनी में। तो कुरान को कैसे देखेंगे? कुरान तो मौजूद है, कुरान को कैसे देखेंगे? वो तो फुरकान है। कुरान तो अरबी में है, आपकी अरबी जुबान है। अरबी में है तो अरबी क्या कहते हैं, अरबी ख़त्म हो गई दुनिया से। आज भी अरबी बोली जाती है, आज से 1400 साल पहले भी बोली जाती थी, 1500 साल पहले बोली जाती थी। आपकी और मेरी जुबान तो अरबी नहीं है ना खान साहब। हम कुरान को कैसे ओ अरबी ज़ुबान हो या ना हो, भाई कुरान पाक तो ना, कुरान पाक का जो मेन मैसेज है ना, आप कहीं से भी तर्जमा उठाएंगे ना, तर्जमा भी उठाएंगे तो वो आपको गुमराह नहीं होने देगा, तर्जमे में वो आपको वो चीज़ नहीं होने देगा। तर्जमा करना कैसे है ये बताएं ना। तर्जमा करना कैसे है? तर्जमा भजन ये फॉर एग्जांपल अरबी के कोई भी लफ्ज़ होते हैं ना, तो वो हम देखेंगे कि ये लफ्ज़ का आज से 1400 साल पहले क्या मतलब लिया जाता था, ये वो कैसे जो पता मतलब चलेगा? लिया जाता था उन मतालिब के सियाक़ो सबाक 1400 साल ये पता पहले चलेगा ना। हिस्ट्री आपको कहाँ से मिलेगी? मिल जाएगी वजन, जो सर्च करते हैं मिल जाती है। मतलब जो हिस्ट्री 14 साल पहले की आपको मिलेगी, मसलन कोई किताब हिस्ट्री की, उस पर एतबार कर लेंगे। और भाईजान वो हिस्ट्री नहीं मिलेगी, वो कहने का मकसद है कि मेन चीज़ें तो मिल जाएंगी। गिनती का एक आध लफ्ज़ का प्रॉब्लम है, इस लफ्ज़ का मतलब आज के दौर में क्या लिया जाता है और आज से 14 साल पहले के दौर में क्या मतलब लिया जाता था, वो ये चीज़ होती है। तो वो किसी लफ्ज़ के बारे में कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, कोई लफ्ज़ होता है वो उस तक आपको पहुँचने। फॉर एग्ज़ाम्पल मुतवफ़ी का लफ्ज़ कुरान पाक में जितनी जगहों पे बयान आया है, आप उधर चेक करेंगे कि भी हाँ भी ये इसका क्या मतलब होता है, तो उन्हीं आयत की रोशनी में आ गया हदीस को देखेंगे ना आप। अच्छा, यहाँ पे मैंने आया तौफीक का, तो आप देखेंगे ना, आप देखें क्या मतलब है, कोई भी आयत खोल के देख लें। आपने आज तक पढ़ा है तो आपने क्या मतलब देखा है कुरान में? मैंने तो यही देखा है कि वफात के का मतलब लिया जाता है, वफात के अलावा कोई माने नहीं कुरान में तौफीक का? मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी आपके हिसाब से है तो आप चेक करके बताएं मुझे भी, अभी चेक करके बता। मेरे इल्म में इजाफा करें। अगर तवफ़ी का मानी मौत के अलावा कोई निकल आया फिर क्या करेंगे? नहीं, अगर निकल आएगा तो फिर देखेंगे ना, फिर थोड़ा सर्च करेंगे, और अगर सही होगा तो उसके अलावा भी और मुतालिब निकलते हो तो उन्हें फिट करके देखेंगे सियाक़ो सबाक में कि उस वो जो आयत है जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वहाँ पे क्या मतलब, क्या क्या मतलब निकल। आज से पहले आपने तवफ़ी का कोई और मानी नहीं पढ़ा कुरान में, ये कहना चाह रहा है? नहीं, मैंने मौत के अलावा नहीं कोई पढ़ा, वफात के ना।
बहुत जगह लफ्ज ये आया है अच्छा खान भाई, ये कौन सी आयत है जिसमें मौत आया हजरत ईसा के बारे में कि वफात पा गए हैं? मैं ये कह रहा हूँ कहीं पे भी मुतवफ़ी का लफ्ज़ आया ना तो वहाँ पे उसका मतलब जो है वो मौत का ही लिया जाता है, तर्जुमा ले लें कहीं से भी। मैं ये कह रहा हूँ हजरत ईसा के बारे में क्या आया कि वो वफात पा गए हैं? जी, यानी कि अल्लाह पाक ने उन्हें उठा लिया, वफात दे के तो फिर उठा लिया गया ना, जैसे सबको अल्लाह पाक उठाते हैं। तो उन्हें ये है कि जिस्म समेत भी उठा लिया गया। यहूदियों ने इन्हें हाथ नहीं लगाया, और वो जो दूसरा शख्स था वो उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत दे दी, तो उन्हें दूसरे शख्स को वो स्लीप दी गई थी। वो छोड़ दीजिए, अरे भाई वो छोड़ दीजिए। वो कौन सी आयत है जिसमें वफात दे दिया और उठाया? वो कौन सी आयत है भाई? वो पीर इसकानी साहब आप आलम है ना, आप आयत वगैरह ढूंढे, हम तो स्टूडेंट हैं। मुझे आप यकीन कीजिए, मुझे नहीं मिला इस तरह की कोई आयत। ये वही अगर आप जो ऐसी आयत आप पेश सूरह मरियम में करेंगे, वफात दे दिया और उठाया, सूरह मरियम, मेरा ख्याल है सूरह मरियम है, सूरह अल इमरान है, आप देखें जरा वो कौन सी वही आयत जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत जगह मौजूद है ना भाई कुरान मजीद में। जी खान भाई अहमदी हैं? मुझे नहीं मुझे रेफरेंस नहीं आ रहा। आप अहमदी हैं? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं इसका नहीं भाई, हम अहमदी नहीं, मुसलमान हैं हम। अहमदी नहीं है? नहीं हाँ भाई, नहीं अहमदियों में तो फिर इस तरह वो आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं ना। जी भाईजान। नहीं भाईजान, मैं अहमदी नहीं हूँ। अच्छा ठीक, तो वो कौन सी आयत है भाई? ये वही आयत ढूंढने गए हुए हैं ना ये भाई। आप ये बताएं ना, मुतवफ़ी का लफ्ज़ कुरान में कितनी दफ़ा आया है, और वो जितनी दफ़ा भी आया है तो उसका तर्जुमा क्या लेते हैं, क्या आया हुआ है? फिर साहब आप ये चेक करके बताएं ना। अच्छा जनाब, मुख्तलिफ मानी आयत के तफसीरुल मानी अल्फाज भी तो होते हैं ना, वहाँ आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ कौन सा लफ्ज़ लगने हैं? मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है कि मुतवफ़ी का लफ्ज़ एक वर्ड होता है ना, वो कुरान पाक में 3 दफ़ा आया होगा, 4 दफ़ा आया होगा, 5 दफ़ा आया होगा। वो जहाँ जहाँ पे आया है तो उसमें क्या डिटेल क्या वो आयत वो पढ़े ना, तो उसमें मौत का जिक्र है या नहीं है। वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको कुरान। चैट जीपीटी कर लें, गूगल कर लें, गूगल का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, कुछ भी करके पढ़ के देख लें। आपको इल्म ही नहीं है, आपको पता है तो आपको ये नहीं पता कि मुतवफ़ी के मानी और भी कुरान में कई जगह है। ओहो भाईजान, आपने कहना मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा जी ये इस तरह है, आपने कहा नहीं इस तरह नहीं है, तो मैंने कहा चले आप ढूंढ ले। आप सर्च करेंगे ना चैट जीपीटी पे कि मुतवफ़ी मीनिंग इन कुरान हाउ मेनी टाइम्स, तो वो आपको आ जाएगा, सारा आ जाएगा। मुझे मेरा फ़ोन आ गया था, माजरत का हूँ। अमर भाई आप बात कर रहे हैं? और इस्लाम 360 भी 10-15 तो है मिनट ना। दे दीजिए, 10-15 मिनट दीजिए, मैं बताऊंगा। अच्छा भाई पीर खान साहब आप 10-15 घंटे ले लेना, प्रॉब्लम नहीं, मैं बिजी हो जाऊंगा बाद में। बता दीजिए वो कौन सी आयत है मोहतरम? पीर साहब आप सर्च करके आए कि कुरान पाक में मुतवफ़ी का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया है, और जितनी दफ़ा भी आया उसमें क्या क्या मीनिंग आ लिया गया है। भाईजान आपकी बात हम मान लिए, मुतवफ़ी का लफ्ज़ मौत है, मौत ही मान लेते हैं। हमने आपसे झगड़ा नहीं किया, मैंने नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ आयत झगड़ा कौन सी कोई है नहीं, जिसमें- झगड़े वाली क्या बात है। ना मुतवफ़ी को आप की क्यों बात लेकर पे। पकड़े हुए हैं? मैं कहता हूँ ठीक है वो वफात ही है,
अब बताइए वो कौन सी आयत है जिसमें हजरत ईसा को बकौल आप के वफात दिया और दर्जात बुलंद किए या उनको उठाया, वो कौन सी आयत है, जरा बता दीजिए। उसमें पीर साहब ये सिर्फ कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रही है कि हम मुसलमानों का अकीदा ये होता है कि भी ये जिंदा उठा लेगी। मुसलमानों के अकीदे को छोड़ दीजिए प्यारे भाई, खान भाई ऐसा मत कीजिए। खान भाई वो कौन सी आयत है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वफात दे दिया और फिर उनको उठाया, वो कौन सी आयत है? मुसलमानों को छोड़िए पहला। ओह पीर इसकानी भाई आपको पता तो है। फिर वही बात पता है, अगर मुझे पता होता मैं आपसे पूछ लेता भाई। अब मुझे बंद करके देखना पड़ेगा ना, मुझे माइंड में नहीं आ रहा इस वक्त। हाँ आप देख लीजिए, कुरान मजीद में देख लीजिए कहाँ है। फिर हम एक बात करते हैं, उसका दलील या प्रूफ तो होना चाहिए, कम से कम मैं मुतमईन हो जाऊं कि वाकईतन भाई ने जो बात की है कुरान मजीद से साबित है। आप यकीन कीजिए मुझे नहीं मिला ऐसी आयत कि वफात दे दिया और उठाया। कई मरतबा कुरान मजीद पढ़ा हूँ। हाँ जी खान साहब आपके पास है कुरान? खान भाई चले गए? जाने कौन को सूरह इनाम की ये 60 नंबर आयत है। अभी इनके सामने रख के पूछते हैं कि यहाँ तवफ़ी का क्या नाम है। भाईजान जिसको कुरान मजीद का मालूम ही नहीं है एक आयत और फिर उस पर अकीदा बना हुआ है और अकीदा दे रहे हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? बंदे मजहबी बात करने आ जाते हैं लेकिन सच नहीं बोलते ना। वो कह तो रहे हैं कि मेरे इल्म में ऐसी कोई आयत नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उनके इल्म में ऐसी कोई आयत नहीं हो। वाहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल वयअलम मा जरहतुम बिन्नहार। इसका क्या मतलब है? अभी आते हैं तो उनसे पूछते हैं। यहाँ मौत ही है ना जी, यहाँ तवफ़्फ़ी का मानी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, रात को मौत आ जाती है। वयअलम मा जरहतुम बिन्नहार, दिन चढ़ता है तो जिंदगी। क्या किया जाए, क्या किया जाए अमर भाई? मैं खाना खा रहा था, मैंने उसकी बात सुन ली है, लेकिन मौलवी नहीं हमारे साथ तो बहुत झगड़ा करता है। जब मौका आया तो डरते कर जिसका गिरफ्तार पकड़ना था उसका नहीं पकड़ा, डर गया मौलवी। अब क्या करें भाई, हमें हर आदमी अल्लामा है, कुरान पढ़ भी सकता है या नहीं, अरबी का एक लफ्ज़ जानता है या नहीं, लेकिन हर आदमी अल्लामा है। खान साहब आप नीचे बैठिए, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ऊपर तशरीफ लाएं जरा। आपके सामने मैं आयत रखता हूँ, इसका तर्जमा जरा मौत करके दिखाइएगा। अभी देखते हैं पूरा इमरान। ऊपर आके बताए ना, अब नीचे टेक्स्ट मैसेज ना लिखे, ऊपर तशरीफ लाए। मैंने अभी जो बात कर रहे थे वो चले गए कहीं? नीचे चले गए हैं, ऊपर से नीचे चले गए हैं इधर ही, सिर्फ ऊपर वाली मंजिल से नीचे वाली मंजिल पे चले गए हैं। उनको पता ही नहीं कि तवफ़ी का माना नींद भी होता है। यही मैं उनसे पूछ रहा था कि तवफ़ी का मानी मौत ही होता है। कहते हैं मेरे इल्म में तो यही है, मौत ही होता है। अब मैंने आयत निकाली है तो वो ऊपर वाली मंजिल से नीचे वाली मंजिल। अल्लामा चैट जीपीटी खान साहब ऊपर तशरीफ लाए।
उस्मान भाई वो नीचे खान साहब है, इनको जरा पकड़ के ऊपर भेजिए। अच्छा भाई, आपकी गेस्ट रिक्वेस्ट नहीं आई, आप फिर बाहर निकलें ग्रुप से, एक दफा ब्रॉड छोड़ के दोबारा ज्वाइन करें। मैंने आपको इनवाइट किया हुआ है रादर, और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आप मिर्जा साहब ने भी इसके मुतालिक कुछ लिखा हुआ है। एक मिनट है साहब, आप हैं? एक मिनट कोल ही रखो, खजाना ना खोले हो, खजाने का मुंह ना खोले हो। अच्छा मैं थोड़ी सी आयतें पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिएगा क्या मतलब है इनका। हाँ, जब आप पढ़ेंगे कुरान मजीद फरमाया वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, ऐ लोगों डरो उस दिन से जब तुम अल्लाह के सामने पेश हो जाओगे, लौट के जाओगे अल्लाह के। हाँ, क़यामत का नक्शा है। आगे अल्फाज है सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अब ये इसका तर्जुमा यहाँ क्या करोगे? सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन, फिर हर जान को मौत दे दी जाएगी, मा कसबत, जिसने जो कुछ कमाया, वहुम ला युज़लमून, उन पर जुल्म नहीं होगा। भाई मैं पेश हुआ हूँ, मैंने अच्छे अमाल किए हैं, क़यामत के दिन फिर मुझे मौत दे दिया जाएगा क्योंकि मैंने जो कुछ किया मुझे मौत दे दिया जाएगा। क्या मतलब है? लफ्ज़ तुवफ़्फ़ा, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है लोगों डरो उस दिन से, हिसाब किताब का दिन है, नक्शा है क़यामत का, तुम पेश हो जाओगे अल्लाह के सामने। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन, फिर हर जान को, हर इंसान को पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। माँ का सबक जो जी जो कुछ उसने कमाई। खान साहब आपने कोई बात करनी है तो माइक की करीब मुंह करके बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही, शोर आ रहा है आपको। भाईजान लफ्ज़ का बात मतलब मैं वही कर रहा हूँ कि आप चेक करें ना कि भी क्या क्या मतलब आया, किस जगह पे क्या क्या मतलब आया। अब कॉल आपके क्या मतलब आपको लग रहा है? नहीं, हम तो आपसे पूछेंगे, आपने कहा कि तरक्की का मानी बहुत अरबी समझते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अरबी समझते हैं। तो इसका तर्जुमा कीजिए, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। तर्जुमा कीजिए। आप इसका तर्जुमा क्या कर रहे हैं? मैंने तो अभी कर दिया आपके सामने, आपने सुना नहीं? नहीं मैंने नहीं सुना। सिर्फ वक्त बर्बाद करोगे या सुनोगे? जी सुन रहे हैं। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल याती बिमा गल्ल यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। फिर वही तुवफ़्फ़ा है, नक्शा है, फिर मौत दे दी जाएगी। वहाँ पे एक दफा फिर मौत दी जाएगी, मौत दे के यौम ताती कुल्लु नफ्सिन, आ जाएगा ना। जी सबको कुल्लु नफ्सिन, अल्लाह के बंदे ज़ाइक़तुल मौत। खड़े हैं। यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, अल्लाह के बंदे क़यामत का दिन है, आप खड़े हैं अल्लाह के हुजूर, वहां आपको मौत दे दी जाएगी जो क्योंकि तुमने अच्छे अमाल किए हैं या बुरे, बल्कि हिसाब किताब होगा, तुम्हें सबको उसका बदला दे दिया जाए। जी वो जो सूरह आल इमरान की आयत है उसका तर्जुमा करके आप बताएं ना। किसका, कौन सा सूरह आल इमरान का? आप निकालिए, आपने पेश किया, मैं मुझे क्या मालूम। 355 ना, 355। अच्छा आयत नंबर 55 पढ़िए जरा आयत। इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा, कुरान पाक नहीं ना है।
आपके पास कुरान अभी तो कैसे आपको याद आ गया? पढ़ना नहीं मालूम है भाईजान? मतलब नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं पढ़ सूरत आल इमरान आप निकाल लीजिए ना, कितना आसान है। गूगल से भी आप निकाल सकते हैं, कुरान से भी आप निकाल सकते हैं। जब सूरत आल इमरान मालूम हो गया, आयत नंबर 55 मालूम हो गया, भाई कोई डिस्प्ले कीजिए यहाँ पे। अब बिल्कुल बिल्कुल कुछ आपके सामने नहीं है, आयत याद भी नहीं है, कुरान भी नहीं है, नेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाईजान। नेट है, मैं उधर जाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। अजीब बात है, अजीब। भाई डिस्प्ले कीजिए यहाँ पे, बड़े स्क्रीन पे ले आइए इस आयत को, भाई को पढ़ेंगे। कौन सी आयत है? मैं लगा देता हूँ। आल इमरान 55। मलिक साहब ठहर जा। उन्होंने ये चेक करना है मुझे अरबी पढ़नी आती कि नहीं आती। आप कोई सी भी आयत लगा दें, नो प्रॉब्लम। कोई सी नहीं, इसी आयत को हम पढ़ेंगे ना, देखेंगे। इसी आयत को पढ़ लें, इसी को लगा दें। आपने तो ये चेक करना है ना मुझे अरबी आती कि नहीं आती। जी जी। तो अरबी चेक करनी है तो वो तो कुछ भी लगा सकती है ना भाई। हमने इस आयत को समझना है ना। आपने कहा अल्लाह पाक ने इस आयत को समझना है, तो आयत आपने पढ़ ली है ना, तो फिर आप ही पढ़ के तर्जुमा बता दें। अल्लाह के आप बंदे मुझसे आयत पूछ रहे हैं को तो मेरी पढ़िए ना, अरबी चेक आपने करना आयत चाह को रहे हैं ना। पढ़िए। जी जी, मैं चेक करना चाहता हूँ। ओहो, आप चेक करना चाहते हैं तो चेक तो कुछ भी अरबी की लफ्ज कुछ भी आयत बंदा पढ़ के कुछ की सुना क्यों, सकता है इसी ना। आयत को पढ़िए ना, कुछ को क्यों। ओहो, इसको भी पढ़ लेंगे, लेकिन ठीक है। आप अरबी चेक कर रहे हैं ना। आप अरबी कोई वो आयत बेसिकली तो चेक पेश करना कीजिए चाहते हैं ना कि मुझे अरबी पढ़नी आती कि नहीं आती। मलिक साहब वो आयत पेश कीजिए। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, पेश कीजिए। आल इमरान। इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका। आमिर भाई कह रहे हैं, मैं लगाता हूँ। लगा लीजिए। नहीं लगा दे आप या उस्मान भाई, दोनों में से जो भी पहले लगा दे। ये उस्मान भाई लगा दें, आप उस्मान भाई लगा दें। हाँ भाई पढ़ लीजिए सामने। थोड़ा बड़ा भी करें ना, इससे बड़ा तो होगा नहीं ना भाई, छोटा छोटा। इससे बड़ा तो होगा नहीं। बहुत बड़ा मसला है। आपने अरबी चेक करनी है तो ये आप फिर खुद ही पढ़ लेना, मुझसे कुछ और सुन ले। क्या सुनना चाहते हैं? मैं इसी आयत को आप दुआ कुनूत सुन ले, आयतुल कुर्सी सुन ले। नहीं, ये आयत जो आप पेश कर रहे हैं इसी आयत को सुनना चाहते हैं तब। जी भाईजान, जी पढ़िए खान साहब। इस काला या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का इस तरह का है। इस तरह का नहीं है, पढ़िए आराम से देखिए। अब मेरे सामने नहीं ना शो हो रही है भाई। हाँ, ये भी थोड़ा बड़ा हुआ था, नहीं बोली थोड़ा बड़ा करे भाई, इनको बड़ा करो, बड़ा करके दे दो इनको भाईजान। हाँ अब देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया मुतत्तहिरुका मिनल। इधर नज़र नहीं आ रहा ना सर, थोड़ा सा लफ्ज़ उधर गया हुआ है और ये थोड़ा छोटा है। मिनल्लज़ीना कफ़रू जाइलल्लज़ीना, ये लफ्ज़ थोड़े छोटे छोटे हैं ना, कुछ पढ़े जा रहे हैं कुछ नहीं पढ़े जा रहे। जो मुश्किल वाले लफ्ज़ हैं वो थोड़े छोटे हैं। ठीक है आगे। जो मुश्किल वाले लफ्ज़ हैं वो बड़े छोटे हैं, जो आम लफ्ज़ हैं वो बड़े हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है फिर इसका आंसर ऐसी बात नहीं है, बड़े छोटे हैं। जो मुश्किल लफ्ज़ हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं भाई। ये क्यों किया आप लोगों ने ज्यादती खान साहब के साथ? जी खान भाई सही बात है।
ये देखे ना मैंने, अगर वो पढ़ लिए तो दूसरे तो इजी है, वो भी पढ़ सकता हूँ। तो पढ़ लीजिए ना भाईजान। हाँ फिर अभी इधर से पढ़। कहाँ चले खान साहब? खान भाई मुझे जाना है। खान साहब सारा पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिए, दूसरी लिया जगह आपने से पूरा? पढ़ा है। हाँ पूरा पढ़ लिया? आपने सुना नहीं? हाँ जी पढ़ लिया। किसी ने सुना है तो बता दीजिए भाई, किसी ने सुना है उधर नहीं सुना जी? ये आवाज आवाज को नहीं आई है, चले खैर ये पीर साहब कोई गल नहीं, बस एक आवाज को नहीं आई अरबी की। कहाँ पढ़ा? पीर साहब आवाज को नहीं आई अरबी की, चले खैर ये कोई नहीं। खान साहब हमने तो नहीं सुना। देखा नहीं सुना आपने? देख ली। ये लफ्ज इधर छोटे छोटे है ना, इधर नहीं पढ़ा मैंने, दूसरी जगह पे पढ़ा है। उधर जाता दूसरी हूँ जगह पढ़ता हूँ कौन तो सी ये जगह है? आवाज इधर बंद हो जाती ना। तो आप कुरान मजीद साहब और दूसरी जगह कुरान मजीद क्या करें फिर इसका, आपसे गिफ्ट लेंगे हैं आप मेरे लिए एक ना रेडी रखें, मैं आपसे लेने आऊँगा। टेलीफोन का स्क्रीन जो है वो शेयर हो जाता है ना, डबल हो जाता है ना, वो कीजिए ना। अच्छा वो कैसे होता है? अब आपका कौन सा फोन है मुझे नहीं मालूम। मुझे पता, वो कैसे स्क्रीन जो है मेरा वो डबल हो सैमसंग जाता है। गैलेक्सी है। स्क्रीन शॉट आराम से लेके हो ना जाएगा। अपने पास रख लें तो वो फिर बड़ा हो जाता है, उसको जितना मर्जी बड़ा कर लें। चलें ठीक है, मैं पढ़ ही लेता हूँ। आप को बड़ा मुश्किल लग रहा है, तर्जुमा आप कीजिए। नहीं आप पढ़े, मैं दोहरा देता हूँ, मैं दोहरा देता हूँ। नहीं दोहराने का कोई जरूरत नहीं है, आप या पढ़िए या मैं पढ़ लेता हूँ। इस काला ईसा इस काल अल्लाह इस काल अल्लाहु, हाँ? आगे ईसा इन्नी मुतवफ़ीका वराफ़ियुका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइरुल्लज़ीना तुजादिलून। आगे ये नहीं फिर पढ़ा जा रहा, थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो मैं इजीली पढ़ सकता हूँ। अरबी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मुझे पढ़नी आती है। अरबी के तो मास्टर है, उर्दू तर्जुमे के मास्टर नहीं है। अच्छा ठीक है, अरबी के मास्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। छोटे हैं आप पढ़ नहीं सकते, अच्छी बात है। मैं पढ़ूंगा, तर्जुमा तो करेंगे ना भाई? तर्जुमा भी पढ़ना पड़ेगा ना। ये तो फिर आप कहते हैं अरबी के मास्टर हैं, फिर कहते हैं तर्जुमा पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो तर्जुमे की जरूरत ही याद नहीं। करो जब अल्लाह ने, तर्जुमे से मुराद ये कि भी ये तर्जुमा नज़र आ रहा है, या करो जब अल्लाह ने फरमाया ऐ ईसा मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा, तुझे अपनी तरफ पूरी उम्र पहुंचाऊंगा, उठा लूँगा। पूरी उम्र पहुंचाऊंगा, ये कहाँ है? ये कौन से के अल्फाज हैं? पूरी उम्र तक आगे क्या लिखा हुआ है भाई? इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, इसका तर्जुमा क्या है? इतने का बताओ। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया ऐ ईसा मैं तुम्हें पूरी उम्र तक, आगे नजर पूरा ऐसे करके लिखा हुआ है, पूरी उम्र तक। भाई इसको छोड़ दीजिए ना, तर्जुमे को। आप कहते हैं आपको अरबी आती है ना, इसको छोड़ दीजिए। ओहो अरबी पढ़ती आती ना, अरबी का मतलब थोड़ी आता है। हाँ फिर ऐसा मत कहो कि आप देखें। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, जब अल्लाह ने कहा ईसा से मैं तुम्हें मौत दूंगा, जिस तरह से ये आया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जिस्म को, हर जान को मौत आनी है। आप कहें हम सब मर गए, क्योंकि ये आयत है। यहाँ आया इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, ईसा मैं तुझे मौत दूंगा। अब इसे मौत दे दिया, कब दिया? नहीं कहा मैं मौत दे दिया, कहा मौत दूंगा। मुझे भी मौत देंगे, आपको भी मौत देंगे।
आगे वराफिउका इलैया, और जब मैं मौत दूंगा उस वक्त मैं उठाऊंगा। अब आप ये साबित कीजिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत दे दिया। जिस तरह से हमें ये कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, क्या हम मर गए हैं? कोई बचा नहीं है। जी पीर साहब, अब मुझे अभी समझ लगी है कि आपको गलती कहाँ पे लगी। अगर आप इसका पूरा आगे से और पीछे सारी आयत का तर्जुमा और सियाक़-ओ-सबाक़ पढ़ेंगे ना तो फिर आपको समझ लगेगी। मैं वही तो कहता हूँ, ये कि कहते हैं यहाँ पे आपको भाई मेरे आप खाली तर्जुमे को उस तरह करके ना तो वो चीज़ कर रहे हैं। मेरे भाई, आप पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ सही लगेगी। इन्नी मुतवफ़्फ़ी आप थोड़ा सा ना मुस्तकबिल का सीगा है, मुतवफ़्फ़ी का, आगे मौत दूंगा। कब? एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 साल बाद। मैं यही समझना चाह रहा था कि आपको गलती कहाँ पे लगी है। मुझे काफी दिनों से ये पता नहीं चला था कि आप मुसलमान भाइयों सकते हैं ना, आप उसका तर्जुमा कर सकते हैं। नहीं, मेरी गलती पकड़ रहे हैं। मुझे पीर साहब नहीं है। दरअसल नहीं, मैं आपकी गलती नहीं, यानी कि हम मुसलमान भाइयों की गलती ना, मैं ये समझ रहा था कि हमें गलती कहाँ पे लगी है। तो अच्छा, वो मुझे अभी पता चला यहाँ पे लगी, तो मैं फिर फ्री होके दोबारा आऊँगा। ठीक है, थैंक यू। चलो मिर्जा कलमा पढ़ लो फिर। पीर साहब ये मर्ज़ई था, फजूल में बकवास कर रहा, छोड़ दे भाई। कोई भी हो, इस आयत से कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि हजरत ईसा वफात पा गए। कोई माई का लाल, मुस्तकबिल का सीगा है, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं तुझे मौत दूंगा। आप कहें मौत दे दिया, कहां लिखा हुआ मौत दे दिया? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत आनी है। लेकिन आप कहें हर जान मर गया, कहां तक दुरुस्त हो गया? भाई आनी है, मुझे भी मौत आनी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं तुमसे। कोई दुनिया का माई का लाल इस आयत से साबित नहीं कर सकता कि हजरत ईसा को मौत दे दिया, बल्कि मौत दूंगा। यह तो हमारा अकीदा है कि हजरत ईसा को मौत देंगे, हर इंसान को मरना है, यह तो अकीदा है हमारा भाई। अच्छा, मैं मसरूफ हो रहा हूं, जज़ाकल्लाह। ऐसा भी आयत तैयार करके रखी सी, ये कौन फिर की बनेगा? ये कौन सी आयत है? सूरा इनाम है, 6वीं सूरत, 60 नंबर आयत है। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वही है जो तुम्हें रात को तुम्हारी तवफ़्फ़ी करता है। क्या करता है? रात को मार देता है अल्लाह ताला बंदे को। हम भी तो पढ़े हैं, हम भी तो इंतजार कर रहे थे, उनको तो पहले ही काम याद आ गया। बस वो होते मर्ज़ई है ना कोई बने होती है। नहीं, चले, ऐसे नहीं कहना चाहिए जब तक कोई बंदा खुद नहीं। वो कह रहे थे मैं मर्ज़ई नहीं हूँ। हाँ ठीक है, नहीं है तो हम कौन सा मना के तो कोई नाम लेना है। लेकिन अगर मर्ज़ई नहीं है तो बात तो सीधी सीधी करे ना, बात में तो कुछ मुसलमान आलिम जो हैं वो भी कहते हैं कि हज़रत ईसा वफ़ात पा चुके हैं, बल्कि वो मेरे अकाउंट पे भी लगा हुआ है जो वो कह रहे हैं कि जब तवफ़्फ़ी का लफ्ज़ आता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो मौत का माना करते हैं, जब हज़रत ईसा के लिए आता है तो मौत का माना करने में मौत पड़ जाती है। नहीं, यहाँ जो तवफ़्फ़ी का मानी आया है आपके सामने, ये कुरान की आयत लगी हुई है ना। जी जी, ये सूरह इनाम की 60 नंबर आयत है। हाँ जी। यहाँ तवफ़्फ़ी का मानी क्या है? यहाँ तो नींद है ना, नींद भी होता है तो। नींद भी होता है, इसका मतलब तवफ़्फ़ी का मानी मौत नहीं होता हमेशा। हाँ, ये बात वो गलत कर रहे थे ना, शुरू में मैंने कहा था कि ये बंदा गलत बात कर रहा है कि तवफ़्फ़ी का जहाँ जहाँ माना आया है उसका मतलब है मौत। ये तो गलत बात की थी उसने। चलो ये तो गया। दूसरे जो उलमा कहते हैं वो कैसे कहते हैं कि भाई नबी पाक के लिए तवफ़्फ़ी का मानी मौत लिया तो यहाँ पर मौत नहीं लिया? वो कहते हैं तवफ़्फ़ी के लफ्ज़ में जब फ़ाइल अल्लाह ताला है तो हमेशा मतलब मौत होता है। हाँ हाँ, तो बताएं ना, मौत लिया है तो कहाँ मौत लेना है?
ابھی یہاں پیر اسکانی بھائی نے موت ہی مانی لیا نا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ. میں عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا تو درجات بلند کروں گا. تو یہ نہیں کہتے ان وفات جیسے وفات سب کی ہوتی ویسے ان کی بھی ہوگی. مطلب یہ کہا ہے میں تجھے موت دوں گا. ہاں ہاں تو اس میں کیا ثابت ہو گیا؟ موت آ گئی ان کو. ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں کی وفات ہونے کے بعد ان کو اٹھایا گیا. نہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وفات ہونے کے بعد اٹھایا گیا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ متوفی کا ورافع ہوگا نا. بھائی موت دوں گا اور تیرے درجات بلند کروں گا جی، اور تیرا اس رفع سے یہ کروں گا. مطلب نہیں ہے کہ تجھے موت دوں گا مطلب ساری عمر تمہیں زندہ رکھوں گا 2000 سال بعد ماروں گا. میں کہتا 10,000 سال بعد 10,000 سال بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مارنا ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، اس آیت کے اندر کیا خرابی ہے؟ اس آیت میں تو یہی کہا گیا نا. یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وفات دے کے ان کا درجات بلند کرے گا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مان لیا، ہم نے مان لیا کہ وہ موت دے گا اور ان کے درجات بلند کرے گا، لیکن ہم نے یہ کیسے مان لیا کہ ان کو موت آ گئی ہے؟ یہ کیسے ثابت ہوا ہے؟ کیونکہ سب کو جو موت آ گئی تو ان کو بھی سب کو موت آ گئی، اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ان کو بھی آ گئی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نہیں، اس وجہ سے یہ دلیل اس طرح بنتی ہے کہ دلیل وہ ہوتی ہے جو عمومی طور پر جو ایک اصول ہوتا ہے عمومی طور پر. ہاں عمومی طور کے بعد تو وہ بھی مر گئے. عمومی طور پر زندہ ہے جو ہاں ٹھیک ہے جو عمومی دلیل ہوتی ہے. کوئی اور بھی نہیں زندہ. ابھی دیکھ لیتے ہیں چوہان صاحب، سپیڈ نہ پڑھو، یہ فیورٹ تھوڑا ٹاپک ہے. بھائی مان لیا کہ جو عمومی دلیل ہوتی ہے وہ سب پہ لگتی ہے نا، تو وہ عمومی دلیل تو تبھی موت پہ مر جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ بھی تبھی موت پہ مر گئے. عمومی دلیل اب میں پیش کرنے لگا ہوں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. چلو جی عمومی دلیل ہے. ٹھیک ہے. اے انسانوں، اے نسل انسان، تمام انسانوں کو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. عمومی دلیل ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے مرد سے پیدا کیا؟ ان کی خصوصی بات تھی نا. ہاں یہ ہے وہ بات، ان کے لیے خصوصیت ہے کہ وہ باپ کے بغیر پیدا کیے گئے. ہر ایک کے لیے موت ہے کہ وہ آ چکی ہے پچھلے 2000 10,000 سال میں. ہر ایک بندے کو، ان کو معجزتاً خصوصی طور پر ان کو اٹھایا گیا ہے. وہ قرب قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، پھر ان کو موت آئے گی. کہاں پہ لکھا ہوا؟ ہاں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ لکھا؟ ان کے ساتھ خصوصی سلوک کیا گیا. کہاں پہ لکھا؟ ہاں میں بتاتا ہوں ان کے ساتھ خصوصی سلوک کیا گیا ہے کہ ان کو وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہاں لکھا ہوا ہے. ان کو قتل نہیں کیا گیا، ہرگز ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کر لیا. اٹھا لیا ان کو. تو یہاں پہ عمومی دلیل ہے کہ ہر کسی کا رفع مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے. نہیں یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا. ہاں قتل کی نفی کر کے کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی قتل ان کے دیکھیں نا، ان پہ الزام کیا تھا؟ قتل سلیب کے ذریعے ان کو کرنا. نہیں اس کو چھوڑ دیں، آگے نہ جائیں، سلیبوں کی طرف نہ جائیں، آگے نہ جائیں. اس آیت میں پوری جتنی بات ہے آیت پہ رہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، ان کو ہرگز قتل نہیں کیا گیا، بل پوری آیت پڑھیں تو پتہ چل جائے. لو جی پوری آیت کھول کے پڑھ دیتے ہیں. میں کہڑا حافظ قرآن ہے میں کھول لینا، میں تے اینی ہے کہ تو مجھے یاد نہیں، تو چلو پوری پڑھ لینا. کھلو جو سورہ مائدہ دی ہے میرا خیال ہے. اب مجھے وفات مسیح میں بھی آپ ایکسپرٹ کر دیں کہ پہلے یہ میرا موضوع نہیں ہوتا، کبھی میں نے اس پہ ڈسکشن نہیں کی. نہیں چلے یہ بھی ہو جانا چاہیے.
इल्मी तरक्की ऐसी होती है। हाँ जी, वमा कतलूहु यकीनन, ये है जी आयत नंबर इसकी खान है। साहब आ गए जी, खान साहब आ गए। हाँ खान साहब आ गए जी। खान साहब आ गए ने? हेलो, हाँ जी खान साहब, आयत लगी है सामने। खान साहब ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵल्लज़ी युतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वाह वल्लज़ी इसमें ये बताया गया ना युतवफ़्फ़ाकुम ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया था, सलीबरी दी गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया था, वफात दे के उठा लिया था। नहीं, अभी जो बात आप पहले छोड़ के भागे थे ना, अभी उस पे हम बात वापस आ गए करने के लिए। ये जो आयत सामने लगी, ये पढ़ लेते हैं आप? जी जी पढ़ लेते हैं। पढ़े हैं भला। वल्लज़ी युतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैली, हाँ, यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैली व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, मा जरहतुम बिन्नहारी सुम्मा यबअसुकुम फीहि लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। आप तर्जुमा करें इसका। युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। हाँ, इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा भी आप कर रहे थे ना कि ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल नहीं किया गया, सलीब दी गई है। इसमें कत्ल का तो मैंने ये इसका नहीं तर्जुमा किया। खान साहब आप तो इसका नहीं किया। आप तो बिल्कुल ही नाड़ी निकले हैं। आप तो बिल्कुल ही अनाड़ी दूसरी निकले आयत का कर रहे होंगे ना? हैं? दूसरी आयत का किया होगा आपने। ठीक है, इसका आप कर लें। आपने कहा था ना तवफ़ी का मानी मौत होता है हमेशा, और आपके इल्म में कोई आयत है? मैंने जहाँ भी पढ़ा है वहाँ पे कुरान पाक में जहाँ भी मैंने पढ़ा है ना, वहाँ पे मुतवफ़ी का मीनिंग आज आपको पढ़ाते हैं ना, नई आयत पढ़ाते हैं ना। पहले आपने जहाँ भी पढ़ा है वहाँ मौत होता था। आज आपको ये आयत पढ़ाते हैं। ये सूरा इनाम की 60 नंबर आयत है। वाह वल्लज़ी, वही अल्लाह है, यतवफ़्फ़ाकुम, तुम्हें तवफ़्फ़ा करता है, तुम्हें तुम्हारी तवफ़्फ़ी करता है, बिल्लैल, रात के वक़्त। रात के क्या वक़्त बंदे करता है, क्या वो तुम्हारी तरफ ही करता है, क्या मतलब? हाँ, आपका बताया हुआ मानी तो यही बताता है कि रात को बंदा मर जाता है, सवेरे उठ जाता है, रात को मौत आ जाती है। नींद भी तो हाफ नींद होती है। नींद भी मौत की वो एक दूसरी बहन है ना। नहीं, ऐसे ना करें। अब मौत ही इसका मानी करें, भैन ना मानी करें, भरा को ही रहने दें। मौत, ओहो आपने कहा तवफ़ी का मानी मौत होता है, बहन नहीं होती, नींद मौत की फूफी होती है। हाँ, आपने कहा था तवफ़ी का मानी मौत होता है, यही कहा था ना खान साहब? जी जी, मैंने कहा जिधर इधर भी यही है ना। इधर करें भला मौत। वही अल्लाह है जो रात को तुम्हें मौत देता है। हाँ बिल्कुल, कहें भला रात को मरते नहीं है? मर जाते हैं, आप मर जाते होंगे, हम तो नहीं मरते। रात को भाई जब हमारी रूह परवाज होती, खाली जब बंदा सो रहा होता है ना, उस वक्त नहीं वो होता, उस वक्त मौत की एक हालत होती है, मौत की हालत होती है। अगर आप इसका करेंगे तो मेरा ख्याल है दूसरा आप वर्ड्स नहीं ला सकेंगे इसके नींद की जो है। फिर आप अदब से नहीं ना वाकिफ, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तकरीबन मौत ही होती है वो। हाँ, ऐसा कर लो, नींद भी मौत ही होती है, तकरीबन मौत ही होती है। फिर वो अगर आप जैसे पीर इसकानी साहब कह रहे थे ना कि वो क्या कह रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत होंगे या होंगे, हाँ, उन्हें मौत का जिक्र कर रहे थे देंगे। वो देंगे, तो वो अब कुरान पाक तो क़यामत तक है ना, कुरान पाक क़यामत तक है और कोई दूसरी बुक भी नहीं आएगी। अब लेट्स सपोज क़यामत के एक दिन पहले भी वो ये इन मफरूज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जब कुरान पाक लॉजिक नहीं बनती, ईसा अलैहिस्सलाम को मौत आ जाएगी, फिर बाद की बात बाद में करेंगे। फिलहाल तो कुरान पाक में यही कहा गया है ना। ओहो, लॉजिक नहीं बनती ना। नहीं, लॉजिक आपकी लॉजिक तो अभी यहाँ पे ढेर हो गई है। सवाल उठाते हैं ना वो भाई लोग आपसे, अहमदी को छोड़े, अहमदी का जिक्र ना करें बीच में, वो तो काफिर है, मुखरज मिनल मिल्ला है।
हाँ जी, जो भी है यार, मेरे आपने प्यारे पहले तो ये मुसलमान कहा ना भाइयों को भी तवफ़ी का समझना मानी चाहिए मौत ना। है। खान साहब आपने कहा तवफ़ी का मानी मौत जी है। जी हाँ जी, मैंने कहा जी, यहाँ मैंने हो सकता जगह है पढ़ा तवफ़ी का मानी उधर मौत। मौत का ही मतलब है। ये जो हाँ, आयत तो के मौत सामने ही है ना, इसका मानी मौत है। करें और क्या है। चलो आप ठीक क्या है, मतलब लेते हैं? ठीक है, हम तो नींद ही लेते हैं यहाँ पे। वो तो नींद का मतलब मौत ही होता है। नींद का मतलब मौत होता है? कौन से शहर में होता है नींद का मानी मौत? और नींद भी हाफ मौत होती है। नींद जब बंदा सोता है ना, आप इसे आगे पीछे पूरा तर्जुमा पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा। 2 सफ़े आगे 2 सफ़े पीछे। ठीक है, अब आप माइक म्यूट लगा लें। आपका पता लग गया है कि आपको अबूर नहीं है इस बात पे। ज़रा चौहान साहब से मुझे बात कर लेने दें। जी चौहान साहब, ये 157 नंबर आया था, इसकी सूरह निसा की है। अल्लाह ताला ने कहा व कौलहिम इन्ना कतलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह। यहाँ से ये आयत शुरू होती है। उनका ये कहना कि हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया है, जो अल्लाह के रसूल थे। वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। ना वो कत्ल कर सके, ना वो उनको सलीब दे सके, बल्कि वो शुबे में पड़ गए। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्ह। और है क्या मसला, क्या है कि ये ऐसी बात में इख्तलाफ कर रहे हैं जिसके बारे में शक है इनको, जिसका इनको शक है उस पे इख्तलाफ कर रहे हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न। इन्हें इस बात का कोई यकीन नहीं है। इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, सवाए ज़न्न के, सवाए टेवे टुच्चे नहीं होते, पंचर पुंचर, सवाए टेवों के इनको कुछ भी नहीं पता, कोई यकीन नहीं इनको। आगे है वमा कतलूहु यकीना। हरगिज उन्होंने कत्ल नहीं किया उनको। बर रफ़अहुल्लाहु इलैह, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया है। वकान अल्लाह अजीज़न हकीमा, और अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और पूरी हिकमत जी वाला जी, है। अब यहाँ पे ये बताएं नहीं, ना कि अल्लाह आप ताला ने जरा अपनी तरफ होल्ड उठा लिया है। रखें। खान साहब आप होल्ड रखें, आपकी बस की बात नहीं। यहाँ पे तो चौहान साहब बात से है ना बात करना सबकी, हम सबकी बात। नहीं, आपकी बात क्यों है? चौहान हमें साहब को चौहान क्या साहब को पता बात कर लेने देना प्लीज, आप खामोश रहें। ओके जी, चौहान साहब जवाब दें जी जवाब साहब, अपना चौहान साहब जवाब दें आप। इसमें अल्लाह ताला उनको फरमा रहा है कि वो कत्ल भी नहीं कर सके, ना ही सलीब पर उनको मार सके, बल्कि सारा मामला अल्लाह ताला ने शुबे में उनके लिए डाल दिया। शुबे में डाल दिया, ठीक। और अल्लाह ताला ने उनको उस मौत से बचा लिया जो वो देना चाहते थे, यानी एक लानती मौत जो उनका ख्याल था कि वो सलीब पे उनको देंगे। आगे चलें। उसकी बजाय अल्लाह ताला ने उनको उनके दर्जात बुलंद कर दिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पर दर्जात कहाँ से आगे? मुझे इसका तर्जमा करके दिखाएं। वमा कतलूहु यकीना, हाँ, वो हरगिज उनको उसे कत्ल नहीं किया, कत्ल नहीं किया, बल्कि रफ़अहुल्लाहु इलैह। हाँ, तो कत्ल वो कैसे करना चाहते थे? सलीब देकर करना चाहते थे। नहीं, तो वो नहीं कर ये सके। तो नहीं, ये तो हमारा सवाल नहीं है कि वो जहर देना चाहते थे कि सलीब देना चाहते। वो कत्ल नहीं कर पाए हरगिज, नहीं कर बल्कि पाए। हाँ, बल्कि इसके बरक्स मामला हुआ है। हाँ। कत्ल बंदा ना हो तो उसके बरक्स क्या मामला होता है? इससे बरक्स मामला होता है कि वो कत्ल नहीं होता, वो बच कत्ल जाता ना हो तो कत्ल के बरक्स जिंदगी होती है। हाँ जी, जिंदगी होती है, बिल्कुल। उनको जिंदगी दी गई, जिंदगी उनको जिंदा उठाया गया। जिंदा उठाया गया तो कोई नहीं। रफ़ाउल्लाह का क्या मतलब होता है? रफ़ा हमेशा इंसान का मरने के बाद ही होता है, रूह। हाँ, हमेशा इंसान। अभी तो आपने कहा
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ باتیں مخصوص ہیں